So, students, today in this session, we're going to cover the figure of speech of all the poems. And the very first poem of the syllabus is Dust of Snow, written by Robert Frost. I hope you know the poem and the summary of this poem. So, we directly going to go on the figure of speech. Now, this question is very important in your board examination, where maximum students they get confused. Remember, for the Gujarat board students, the figure of speech are only from the poetry. So whatever the poems are there in the syllabus, you are going to get the figure of speech from your poem only. So you must know what are the literary device of your poem, whether it's a dust of snow, fire and ice, okay, Amanda, the ball poem, animal, or whatever. So you must know. So here we're gonna discuss these poems. Here we go. The very first line of the dust of snow, that is the way a crow shook down on me. The way a crow shook down on me. And the figure of speech of this poem is metonymy. Now, why it is metonymy, dear students? The crow represents sorrow. Metonymy, now why do we say metonymy? Whenever there is a word which represents something, here in this sentence, in this line, the way a crow shook, so here the crow represents, crow black represents the sadness, sorrow. So that's why this sentence is metonymy. जब भी कोई वर्ड जो है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है तो वो मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच बनती है. सेकेंड है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो मेटोनिमी. तो अब यहां पर okay, so the second, the dust of snow from a hemlock tree, that is also the metonymy figure of speech, because the hemlock tree represents an omen. Omen means a bad things, okay, कि जो एक गलत चीज दिखाता है, एक bad omen. So that is your second line, okay, second line of the poem. Third, has given my heart a change of mood. So this one sentence, okay, one line of the poem has a two literary device, that is one is synecdoche and दूसरा alliteration. So synecdoche क्यों है? A part that is heart stands for the poet. So here the word, if you can see, has given my heart. तो ये heart जो है ये किसके लिए stand करता है? Poet के लिए. So you know the synecdoche figure of speech, dear students. Synecdoche क्या होता है? Part to whole and whole to part. जब कोई शरीर का कोई हिस्सा भी अगर होता है ना तो वो किसी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. अगर किसी की आंखें बोलिए तो वो आंखें मीन्स किसकी आंखें? तो वो पोइट की आंखें. हाथ के बारे में बोला है, हार्ट के बारे में बोला है, तो दैट रिप्रेजेंट्स दैट ह्यूमन बीइंग, दैट बॉडी. सो दैट इज सिनेक्डकी. और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो कौन सा कॉन्सोनेंट? एच साउंड इज रिपीटेड. तो क्या है वो? हैज एंड हार्ट. सो हियर यू कैन सी हार्ट एंड हैज. पहला ही वर्ड है देखो, हैज गिवन माई हार्ट. सो दिस इज ऑल्सो द एलिट्रेशन. और फोर्थ सेंटेंस जो है, and saved some part of a day I had ruined. So that is also the alliteration literary device. The sound of the consonant S is repeated in the word saved and some. Is that clear? Everybody? Very simple. अगर ये figure of speech को हम देखें तो यहाँ पर देखो दिया है, पहला sentence क्या आएगा? The way crew shock, that is metonymy. Very simple. The dust of snow from a hemlock tree, that is also metonymy. Very simple, क्योंकि यहीं पर explanation है. And has given my heart a change of mood, that is, what is this figure of speech? Third one, what will be the right answer in the third? Option D. Option D, synecdoche and alliteration, absolutely right. और fourth जो है वो है आपका and saved some part of a day I had ruined, that is alliteration. Answer alliteration. Okay, so that's great. Here we go on the fire and ice. आई होप आपको थोड़ा पता चला होगा. इसमें ज्यादा करके मेटोनिमी और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, याद रखना. और एक सेंटेंस है जिसमें सिनेक्डकी है पहली पोएम में. ये दिमाग में स्टोर करना सीखो बच्चों. ओके, ट्राई टू स्टोर दैट. ओके, व्हाट पोएम हैज अ पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दैट पोएम. सेकंड पोएम है हमारी फायर एंड आइस. फायर एंड आइस, आई होप यू नो द समरी. हियर वी गो. फायर एंड आइस का पहला सेंटेंस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. Some say, देखो some say पहला ही figure of speech हमारा alliteration. The sound, consonant sound is repeated. Okay, let's see, let's go on the second. This is not only the one, एक ही sentence नहीं है इसमें. So some say the world will end in fire. Another is metaphor. Okay, so alliteration है क्योंकि इसमें S sound repeat हो रहा है और दूसरा W sound repeat हो रहा है, तो alliteration figure of speech तो है. दूसरा है metaphor. क्यों?
देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन फायर एंड डिजायर। अब यहां पर फायर किसके लिए स्टैंड हो रहा है? डिजायर के लिए। तो ये जो लाइन है आपकी पोएम की, ये मेटाफोर भी है। डियर स्टूडेंट्स, मेटाफोर का मीनिंग क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया था कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल क्या है? शिप है। कहां का शिप है वो? डेजर्ट का। तो ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। लाइफ इज एन आइसक्रीम। लाइफ क्या है? एक आइसक्रीम है। आइसक्रीम जैसे लाइफ है। ओके, हमें एंजॉय कर लेना चाहिए, वरना आइसक्रीम कैसे पिघल जाती है, वैसे एक दिन ये लाइफ ओके मिट जाएगी, चली जाएगी। सो दैट इज लाइफ का एग्जांपल मैंने दिया, दैट इज मेटाफोर। तो मेटाफोर क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज एन लाइफ। तो ये मेटाफोर भी है। सेंटेंस क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, और मेटोनिमी भी है। क्यों? क्योंकि द वर्ड फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। अब यहां पर फायर का जो मीनिंग होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिजायर को। तो याद रखना दोस्तों, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये एलिट्रेशन भी है, मेटाफोर भी है, और मेटोनिमी भी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट्स गो ऑन द सेकंड सेंटेंस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस। So here antithesis, you know antithesis, opposite words, fire and ice, fat and thin. Okay, so black and white. When opposite words are used in the line, that is antithesis figure of speech. दो opposite words, okay, वो sentence में कहीं पर भी हो सकते हैं, शुरू में हो सकते हैं, या सेंटर में हो सकते हैं, या तो सेंटेंस के लास्ट में हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स है, फायर एंड आइस, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट है। रिपीटेशन, भाई क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर? सम से, सम से। देखो यहाँ पर शुरू में देखो सम से, और यहाँ पर लास्ट में भी देखो सम से। सो रिपीटेशन, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन भी है भाई, एस साउंड रिपीट हो रहा है, डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है, वर्ल्ड विल, सो डब्ल्यू एंड एस साउंड। नेक्स्ट मेटाफोर भी है भाई, देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन, फायर ओके एंड डिजायर, एंड आइस एंड हेट्रेड। फायर जो डिजायर है ओके, और आइस जो है वो हेट्रेड दिखा रहा है, तो ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी है। तो मेटोनिमी भी है, क्योंकि फायर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर, और आइस हेट्रेड। तो देखो, एक सेंटेंस कैन बी अ मोर देन वन फिगर ऑफ स्पीच। हाँ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज गेट दैट। इसीलिए आपको एग्जाम में क्या होता है, दो दो फिगर ऑफ स्पीच देते हैं, कि एंटीथेसिस एंड रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशन और ओनोमोटोपिया, सिमिली एंड मेटाफोर, इस तरीके से पूछते हैं, ताकि आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर सकें। बट यू शुड नो। अब देखो, इन सबको लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है। ओके, ये एलिट्रेशन क्यों है, ये मेटाफोर क्यों है, इस चीज को समझना है। स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान दे रहे हो? मेरे बकवास से आप बोर नहीं हो रहे हो? थर्ड सेंटेंस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ये हमारे पोएम का थर्ड सेंटेंस है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। मेटाफोर है। देयर इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन डिजायर एंड फायर। डिजायर ओके, जो फायर के लिए भी स्टैंड होता है। मेटोनिमी, यहाँ पर डिजायर रिप्रेजेंट करता है फायर को। तो ये जो सेंटेंस है, ये मेटाफोर है और मेटोनिमी है। फोर्थ वन, आई टोल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड, ओके, मैंने पढ़ा टोल्ड, टोल्ड नहीं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखो, अब यहाँ पर जब भी फायर वर्ड आता है, तो आप मेटाफोर और मेटोनिमी तो पकड़ के ही चलो। ओके, मेटाफोर, क्योंकि यहाँ पर एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। यहाँ पर आपको पता है कि फायर जो है वो डिजायर के लिए स्टैंड करता है, और आइस जो है वो हेट्रेड के लिए स्टैंड करता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। और मेटोनिमी भी है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर क्वालिटी को या फीलिंग को। तो मेटाफोर और फीलिंग को, तो मेटाफोर और मेटोनिमी तो है। दूसरा यहाँ पर है एलिट्रेशन। क्या? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, फायर, फेवर, फ साउंड। ओके, सो here we go with the fifth one, but if it had to perish twice, perish means destroy, तो ये है हाइपरबोल। अब आपको हाइपरबोल पता है दोस्तों, हाइपरबोल क्या होता है? ओवर एग्जेजरेशन, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, दैट इज हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर क्या हुआ? देयर इज एन ओवर स्टेटमेंट दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू डाई ट्वाइस, अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना। अब ये तो अगर एक ही बार खत्म होती तो दूसरी बार क्यों खत्म होगी? एक ही बार में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक पोएट ने अनुमान लगाया, सोचा है कि अगर ये दुनिया को दो बार तहस होना होता, तो दिस इज समथिंग ओवर एग्जेजरेशन, सो दैट इज हाइपरबोल। मीनिंग को समझना होता है। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच के लिए आपको मीनिंग को डिराइव करना होता है पोएम में, सो दैट इज हाइपरबोल।
अगर आपको याद हो तो मैंने हाइपरबोल में एक एग्जांपल दिया था कि कितना ही सो थिन दैट शी कैन पास थ्रू द आई ऑफ अ नीडल। कितना ही सो थिन, ओके, कोई लड़की इतनी पतली है कि वो नीडल जो है ना उसकी आंख में से पास हो गया। अब ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, बट दिस इज जस्ट ये कहना चाहता है कि कोई इंसान इतना पतला है कि वो नीडल जो उसकी आंख होती है उसमें से पास हो जाए। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान है, वो बहुत ही ज्यादा पतला है, बहुत ही ज्यादा थीन है, ऐसा। So that is hyperbole. Next है I think I know enough of hate. Metonymy and repetition. Repetition क्या रिपीट हो रहा है? I देखो एक सिंगल वर्ड भी रिपीट होता है ना तो भी रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच लगती है। मेटोनिमी, हेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आइस को, क्योंकि यहाँ पर वर्ड है हेट। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, सो दैट इज योर सिक्स्थ। सेवेंथ जो है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है इस पोएम का, द फायर एंड आइस का। तो इसमें देखो एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है एस, और दूसरा है मेटोनिमी, मेटाफोर, ये तो मैंने आपको बताया। इसमें इंटरनल राइम भी है। इंटरनल राइम आपको पता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ओके। जब राइमिंग्स, इंटरनल राइम्स बनती हैं, सो राइमिंग वर्ड्स आइस एंड सफाइस, देखो कितना सही है। आइस, यहां पर आप देखो आइस एंड सफाइस, इंटरनल राइमिंग, ओके, इंटरनल वर्ड्स, इंटरनल राइमिंग वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स जब आते हैं जो एक इंटरनल राइम बनते हैं, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर राइमिंग, इंटरनल राइम। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, so here we go with the multiple choice question. मुझे आंसर को छुपाना पड़ेगा, या so first some say the world will end in fire. What is the answer? Some say the world will end. Metonymy. Metonymy. Metaphor and metonymy, option B. Okay, absolutely right. Second, some say the world will end in fire and some say in ice. Option D. Option D. Antithesis. Antithesis. Third, Fire and ice. okay, fire. And third one, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. Metaphor and metonymy. Metaphor and metonymy. Okay, option B, third B, right? Fourth, but Hyperbole. 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 Option C. fourth C. Fifth, I think I know enough of hate. I think I know enough. Metonymy. 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 Okay, metonymy. Fifth one A. Sixth, to say that for destruction ice is also नहीं great. दिख रहा. So can you say sixth? क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा. Okay, just a minute. Now can you see to say that for destruction Internal rhyme. internal rhyme, okay, ice and suffice. Hello students. Yes, sir. Okay, so the right answer is all. Sir, option C. No, all of the above. It's A. Option D. Option D. Okay, a metaphor, metonymy and internal rhyme. A, B, C, तीनों तीन figure of speech है इस sentence में. To say that for destruction ice is also great and that would suffice. Okay, शायद आपको option दिख नहीं रहे होंगे. So that's what. So all of the above. Last sentence.